Good morning, dear students. Welcome to all of you in maths class. Student, our today's topic is chapter 16, that is triangles. Okay, so today we will learn about what is triangle and different types of triangle. Okay, so let's start our class. So here first we learn about what is triangle. So here in this slide you see we get a triangle by joining three non-collinear points. So student, first we know about what is collinear point. Collinear point, that is the point lie in a line, same line. ठीक है, for here A, point B and point C, that is collinear point. Okay, but here the term non-collinear, that means that not lie in a straight line. ठीक है, और a same line और same path, इस तरह से हम कह सकते हैं. ठीक है, so here you see we get a triangle by joining three non-collinear point. Here point A, point B and point C, and when we join this point A to B, B to C and C to A, we got triangle. So here in definition the statement asks we get a triangle by joining three non-collinear point. ठीक है, that is not lie in a line. Okay, so here the another terms related to triangle, a closed figure formed by joining three line segment is called a triangle. A triangle is also a closed figure because it start from here, then this and this. Okay, that is closed figure, that is made up of three line segment. This line segment, this line segment and this line segment. Okay, so here AB line segment, BC line segment and AC line segment. Now a triangle has three sides. A triangle has three sides, that is AB, BC and CA. AB, BC and CA. Okay, a triangle has three angles. Here in this figure, here we see angle A, angle B, angle C. So total number of angles in triangle, there were three angles in given triangle. ठीक है, any triangle, and we read this angle this way also. ठीक है, हम इस तरह से भी इसको रीड कर सकते हैं. एंड दिस इज द साइन ऑफ एंगल, यू ऑल नो दिस इज द साइन ऑफ एंगल. ठीक है, एंगल ए बी सी. ठीक है, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए एंड लास्ट द एंगल सी ए बी. ठीक है, एंगल सी ए बी या बी ए सी. ठीक है, बट हियर वी सी जो एंगल, ठीक है, जब अगर हम इस तरह से एंगल बता रहे हैं, एंगल का नेम बता रहे हैं, ठीक है, तो अगर थ्री पॉइंट्स को लेते हुए, तीनों कॉर्नर्स को लेते हुए अगर हम एंगल का नेम स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो जो हमारा सेंटर पॉइंट है, ठीक है, वो हमेशा बीच में होगा जो एंगल है. ठीक है, जैसे यहाँ देखिए इसमें एंगल बी ए सी, तो बीच में कौन सा पॉइंट है, ए, तो ए मिडिल में होना चाहिए. ठीक है, पहला क्या है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, दैट मीन्स दिस एंगल. ठीक है, तो बी क्या है आपका, मिडिल में है, फर्स्ट वाले एंगल में. ठीक है, जस्ट लाइक सी भी क्या होना चाहिए, मिडिल में होना चाहिए. दैट मीन्स कि इफ़ वी गिव द नेम ऑफ द एंगल, दैट इज द मिडिल इन द गिवन नेम ऑफ द एंगल. ठीक है, या तो हम इस तरह से नेम स्पेसिफाई करें, अदरवाइज हम ऐसे भी कह सकते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, या फिर हम इसको इस तरह से स्पेसिफाई कर लें. एंगल एक और हम क्या लिख सकते हैं, एंगल सी ए बी. ठीक है, ये भी लिख सकते हैं. एंगल बी को और क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, एंगल ए बी सी, तो भी आपका बी पॉइंट क्या है, मिडिल में आ रहा है. ठीक है, नाउ टाइप वी लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ एंगल. सो स्टूडेंट, हियर वी लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ एंगल. देयर वेर टू different term to categorize the triangle, that is on the basis of angle and on the basis of side. साइड के रेस्पेक्ट में एंगल, ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं. ठीक है, और अगर हम एंगल के बेसिस पे बताएं तो ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं. ठीक है, सो हियर
ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल देयर वेर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, दैट इज acute angle triangle, right angle triangle and obtuse angle triangle. This is the categorization of the triangle on the basis of angle. एंगल के बेस पे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, एंगल के बेस पे. सो हियर वी लर्न अबाउट व्हाट इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल. ओके, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल नेम से ही लग रहा होगा कि एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक्यूट एंगल हो. ओके, a triangle whose all angles are acute is called acute angle triangle. So here in given triangle there is 70 degree, 50 degree and 60 degree, and these angles are less than 90 degree, और 90 डिग्री से कम वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, दैट इज एक्यूट एंगल. ठीक है, तो अगर किसी ट्राइंगल में एक्यूट एंगल अगर तीनों दिए गए हैं तो दैट इज कॉल्ड योर एक्यूट एंगल ट्राइंगल. Now, right angle triangle. A triangle in which one of the angle is right angle is called right angle triangle. Here in this given figure, there is one angle. Angle B is 90 degree. That is right angle. So, this triangle ABC is a right angle triangle. ठीक है, right angle triangle कब होगा, जब उसमें कोई भी एक एंगल 90 डिग्री हो. Now, obtuse angle triangle. A triangle in which one of the angle is obtuse is called obtuse angled triangle. ठीक है, in this given figure, here angle B is 110 degree, that is greater than 90 degree and less than 180 degree. ऐसे एंगल को हम क्या बोलते थे, ऑब्ट्यूज एंगल ना, जो 90 डिग्री से बड़े होते थे और 180 डिग्री से छोटे. तो ऐसा कोई ट्राइंगल जिसमें आपका कोई एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. ठीक है, ओनली वन एंगल दैट विल बी ऑब्ट्यूज. ठीक है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ साइड, अब साइड के बेस पे हम ट्राइंगल्स के टाइप पढ़ेंगे. ठीक है, द टाइप्स ऑफ triangle on the basis of sides here: equilateral triangle, isosceles triangle and scalene triangle. So here the first one is equilateral triangle. Equilateral, that is equal. ठीक है, तो अब क्या equal होना चाहिए, a triangle whose all sides are equal length is called equilateral triangle. ठीक है, here in this figure you see side AB 6 centimeter, side BC 6 centimeter and side CA 6 centimeter. So all sides are equal. So we call this equilateral triangle, जिसमें सभी साइड इक्वल हो. Now isosceles triangle. A triangle, iso that means 2 होता है. ठीक है, iso means 2. A triangle whose any two sides are of equal measure. ठीक है, in this given figure you see AB and AC, that is 7 सेंटीमीटर. दोनों क्या है, 7 सेंटीमीटर हैं. तो ऐसे ट्रायंगल्स जिसमें दो साइड इक्वल लेंथ के हों, ठीक है, एंड थर्ड वाला डिफरेंट हो, ठीक है, दैट इज योर आइसोसेल्स ट्रायंगल. ओनली 2 साइड्स दैट इज इक्वल. ठीक है. स्केलिन ट्रायंगल. अ ट्रायंगल हुज नो 2 sides are of equal measure is called scalene triangle. ठीक है, इन scalene triangle all sides different length, तीनों साइड अलग अलग. ठीक है, AB, BC, CA that all length different. This is 4 centimeter, here 5 centimeter and here 6 centimeter. So all lengths are not equal. ठीक है, तो ऐसे ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स जो है अलग अलग डिफरेंट लेंथ के हों, that is called scalene triangle. So student, now we revise all these terms with this figure. ठीक है, this is your triangle and how we show the triangle. अगर हम बोलें कि MNO ये एक ट्रायंगल है, तो इसको दिखाने के लिए हमें क्या लिखना होगा, this is the sign of the triangle. एंगल का क्या साइन होता है, this way. ठीक है, and this is the sign of the triangle MNO. ठीक है, क्योंकि केवल MNO लिखेंगे आप तो किसी को नहीं समझ में आएगा कि MNO क्या है, लेकिन अगर इसी को आपको बताना है कि MNO एक ट्रायंगल है, तो उसके पहले आपको ये इस तरह से रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा ट्रायंगल का, छोटा सा ट्रायंगल बनाना होगा. ठीक है,
सो हियर वी रिवाइज ऑल दिस टर्म. अ ट्रायंगल हैज 3 साइड्स. ठीक है, this. A triangle has 3 vertex that means corner. ठीक है, M and O. ठीक है. नाउ नेक्स्ट टर्म, इट हैज़ 3 एंगल्स. ठीक है, तो आपको ने अभी पढ़ा कि ट्रायंगल में टोटल कितने एंगल्स होते हैं? 3. एंगल M, एंगल N, एंगल O. ठीक है. एन एंगल इज नेम बाय द वर्टेक्स पॉइंट इन मिडिल. ठीक है, तो अभी आपको बताया गया है कि एंगल को हम और कैसे बोल सकते हैं. एंगल अगर M को बताना हो तो एंगल M होगा. ठीक है, और एंगल M. ठीक है, और वी राइट, और क्या लिख सकते हैं इसको कैसे? एंगल NMO. तो जो आपका वर्टेक्स है M क्या है? एक वर्टेक्स भी तो है. ठीक है, 3 वर्टेक्स होते हैं, आपको अभी बताया गया है. तो वर्टेक्स हमेशा मिडिल में होना चाहिए. ठीक है. नाउ इट कैन बी नेम्ड एज एंगल N, एंगल O, एंगल M. द सिंबल ऑफ द ट्रायंगल इज स्मॉल ट्रायंगल. ठीक है, and we write here name of the triangle M and O. Now here you see the classification on the basis of length of side. ठीक है, जो अभी हम लोग पढ़े हैं. And here the properties of triangle, student, that is very important term. The sum of the angle of triangle is equal to 180 degree. ठीक है, ये हमारे एंगल का प्रॉपर्टी होता है कि एंगल. ठीक है, यू ऑल नो देयर वेर 3 एंगल 1 2 3. तो तीनों एंगल का जो सम होगा ट्रायंगल में वो 180 डिग्री होता है. दिस इज रूल, दिस इज फॉर्मूला कह लीजिए, प्रॉपर्टी कह लीजिए. ठीक है, द सम ऑफ द एंगल इज 180 डिग्री. तीनों एंगल का जो सम आएगा वो 180 डिग्री होता है. ठीक है. Now here second property, the sum of the measure of any 2 sides of a triangle is always greater than the third side. ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है कि the sum of the measure of any 2 side of the triangle. ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, आपको पता है. जैसे यहाँ इस फिगर में देखिए दिख रहा है एंगल साइड 4, 7 and 5. तो क्या कह रहा है? the sum of the measure of any 2 sides of triangle is always greater than third side. सपोज अगर हम मान लें ये मेरा पहला और दूसरा है. ठीक है, और ये मेरा तीसरा है. ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है आपको, 4 + 5 = 9 ग्रेटर देन 7. पहले हम इन दोनों को ऐड किए तो 7 से बड़ा है. ठीक है, फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे 5 + 7, तो ये 4 से बड़ा है, तीसरे साइड से बड़ा है. अगर हम इन दोनों साइड को लें, ठीक है, 7 + 4 = 11, तो ये तीसरे वाले से बड़ा है, तीसरे साइड से बड़ा है. ठीक है, दैट मीन्स वी से दिस इज़ अ प्रॉपर ट्रायंगल. ठीक है, तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कि हम किसी ट्रायंगल में अगर हमें देखना हो कि वो एक ट्रायंगल है कि नहीं, अगर उसका साइड दिया गया है, लेंथ दिया गया है, तो आप क्या करेंगे, एवरी टाइम यू ऐड 2 साइड और वो तीसरी साइड से बड़ी होनी चाहिए. ठीक है, जैसे 4 + 7 इन्होंने किया तो 4 + 7 दैट इज़ 11 और 11 5, तीसरी साइड क्या हो गई, 5 हो गई. इसी तरह से अगर हम इन दोनों को ऐड करें, 7 + 5 ऐड करें तो 4 से बड़ा होना चाहिए, तो 7 + 5 क्या है, 12 है और 4 से बड़ा है. नाउ सेम अगर हम 4 + 5 लें, 4 + 5 लें तो 9 होगा, और 9 क्या है, इस तीसरे वाले साइड से बड़ा है. ठीक है, तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कि अगर कहीं साइड दिया गया होगा, 3 साइड दिया गया होगा और बोला गया होगा आपसे कि आप चेक कीजिए कि ये इस साइड से जो साइड दिया गया है ट्रायंगल बन सकता है कि नहीं, तो आप ऐड करके इसी तरह देखेंगे. ठीक है, तो अगर तीनों ऐड करने के बाद अलग अलग, ठीक है, अगर ग्रेटर देन होते हैं तीसरे साइड से, तो हम कह सकते हैं द गिवन ट्रायंगल इज अ प्रॉपर वे. ठीक है. नाउ स्टूडेंट हियर टू अनदर प्रॉपर्टी इन इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड आइसोसेल्स ट्रायंगल. ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होंगे, जिसके तीनों साइड इक्वल हों. ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जब इक्विलैटरल ट्रायंगल की कि अगर तीनों साइड सेम है तो तीनों एंगल भी सेम होंगे. ठीक है, तीनों साइड सेम है तो तीनों एंगल भी सेम होंगे, और तीनों एंगल सेम होंगे इसका मतलब ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा.
और 60 ही क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल मिलके कितना बनाते हैं 180 डिग्री। तो जब हम 60 + 60 + 60 करेंगे तो आपको 180 मिलेगा। ठीक है, सो इन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, अगर तीनों साइड इक्वल है, तीनों साइड इक्वल होते हैं तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। नाउ सेकेंड, आइसोसेल्स ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी है? आइसो मतलब 2, ठीक है, तो आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या था? इन विच ट्रायंगल देयर वेयर 2 साइड्स इक्वल, ठीक है, तीसरा डिफरेंट हो, केवल 2 सेम हो। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी होती है कि जो साइड सेम है उसके सामने, उसके अपोजिट, ठीक है, वाला एंगल इक्वल होगा। दैट मीन्स कि अगर ये वाली साइड इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो इसके सामने का ये एंगल एंड इसके सामने का ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, again understand, if this is a triangle and this side equal, isosceles triangle है और isosceles triangle में 2 साइड इक्वल होते हैं, तो अगर ये इक्वल है तो इनकी प्रॉपर्टी होती है कि जो साइड इक्वल है, तो इस जो दोनों साइड इक्वल है, इसके सामने, इस वाले के सामने का ये एंगल एंड इस वाले साइड के सामने का ये वाला एंगल, इसके सामने ये है ना, ये इसके सामने ना, तो ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल इक्वल होगा। ये इनकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट आवर टूडेज क्लास, दैट इज ट्राइंगल। वॉच द वीडियो केयरफुली and then solve the exercise 16.4. Now student, we are going to construct a triangle with the help of given measures and name it. That is question 7 of exercise 16.4. Okay, so here on the basis of first statement we construct the triangle. The first statement, that is given length of the side, okay, that is 5 centimeter, 4 centimeter, 6 centimeter. Okay, so here how to construct the triangle if side given to you. So first we draw side, that is largest length. ठीक है, सबसे बड़ी लेंथ कौन सी है? 6 centimeter. We draw 6 centimeter with the help of scale. centimeter. Now take your compass, okay, and we measure the length. The first length that is completed 6 centimeter. Now another is 5 centimeter. So we take this compass on the length of 5. ठीक है, जो मार्क लेंगे 5 सेंटीमीटर, मेजर कर लेंगे स्केल से हम 0 to 5. ओके, 5 सेंटीमीटर, थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो लेंथ हम लोग का डिफरेंट आएगा। ठीक है, सो एनी ऑफ द पॉइंट, आप ए से भी कर सकते हैं, बी से भी कर सकते हैं। ठीक है, सो हियर फ्रॉम दिस पॉइंट 5. ठीक है, वी मेक दिस आर्क. नाउ सेकेंड लेंथ 4 सेंटीमीटर. नाउ वी टेक द आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर लेंथ और कम। ठीक है, इसको सेट कर लेंगे, एक बार फ्लैट सरफेस पे ऐसे रख के देख लेंगे। ठीक है, दैट इज 4 सेंटीमीटर. नाउ फ्रॉम दिस साइड, अपोजिट साइड, ओके, वी मेक कट ऑन दिस प्रीवियस आर्क. ठीक है, एंड नाउ दे क्रॉस एट एनी पॉइंट, सपोज C. Now we match this point A, point A and point B. Okay, and if this is correct length we measure through scale, और जब हम स्केल से चेक करेंगे that is 5 सेंटीमीटर जो हमने लिया था. ठीक है, and this is your 4 सेंटीमीटर. सो दिस वे वी चेक इट कि हमने सही ड्रॉ किया है कि नहीं. ठीक है, तो हम लोगों ने चेक भी कर लिया. आवर लेंथ इज दैट इज 5 सेंटीमीटर एंड हियर 4 सेंटीमीटर. सो हियर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू दिस गिवन साइड ट्रायंगल CAB. ओके,
या हम और इसको और क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल सी सी बी ए, सी बी ए, ठीक है। Now here in question B, angles given to you. Okay, we have to construct the triangle on the basis of angle. So first we draw any line. Okay, and here student you see 80 degree, 60 degree, 80 degree, and when we add this angles that is greater than 180 degree, और आपको पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंड व्हेन वी ऐड दिस टर्म, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। सो यू ऑल करेक्ट हियर 40 डिग्री। ओके, सो वी मेक अ लाइन एंड हियर ए एंड हियर बी, ठीक है। सो यू कंस्ट्रक्ट दिस ट्रायंगल योरसेल्फ। अब हमें करना क्या है कि अगर आपको एंगल दिया होगा और उससे आपको ट्रायंगल बनाना है तो यू कंस्ट्रक्ट अ लाइन एंड फ्रॉम पॉइंट ए, यहाँ से आप 80 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है, एंड फ्रॉम पॉइंट बी 60 डिग्री। ओके, एंड व्हेन यू मैच दिस यू गॉट ट्रायंगल, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर यू कंस्ट्रक्ट दिस। ओके, now here as same question as question B, side is equal to 6 centimeter, angle A equal to 75 degree, angle Q is 100 degree. Okay, here name given to you, angles name, ठीक है। साइड 6 सेंटीमीटर, तो इसके पहले वाले में साइड आपको दिया नहीं गया था तो आपने सपोज किया था कोई भी साइड आप ले लेते। अब यहाँ पे कह रहा है 6 सेंटीमीटर, सो वी ड्रॉ 6 सेंटीमीटर। ओके, सपोज here A and here Q, and here you draw angle 75 degree, angle A, ठीक है, and from this point you draw 100 degree angle, and when you match this you got triangle. Okay, and here you give any name, कुछ भी नेम दे देंगे क्योंकि यहाँ का बताया नहीं गया है कि यहाँ कौन से नेम का एंगल है। Now we draw right angle triangle. Okay, you all know right angle triangle, the triangle that have one side 90 degree. This is a right angle triangle. So here we construct a right angle triangle, and you all know in previous video how to construct right angle. Right angle सबको बनाने आ गया होगा, ठीक है। Here we repeat again. You draw any line, ठीक है, A, B. We take any arc, any of small arc, we draw a 60 degree angle and again 60 degree angle. Okay, and we make half of this angle. This is your 60 degree, ठीक है। ये जो आपका भी एंगल बनेगा दैट इज योर 60 डिग्री, ठीक है। और हमें चाहिए कितना, 90 डिग्री हमें बनाना है, तो 60 + 30, ठीक है। तो 60 हमने बना लिया और एक और हमने 60 बनाया है, तो ये जो 60 बनाया है इसका अगर हम हाफ करेंगे तो 30 मिलेगा, तो 30 + 60 दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। नाउ वी मेक हाफ ऑफ दिस अनदर 60 डिग्री, ठीक है। तो हाफ हमने कैसे बताया था, फ्रॉम दिस पॉइंट एंड फ्रॉम दिस पॉइंट। And when we match this, ठीक है, we got 90 degree angle. Okay, and now you match this. किसी भी लेंथ का हम ये भी मेजर कर लेंगे, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, एंड देन मैच इट। और उसके बाद हम इसको मैच कर लेंगे एंड वी गिव द नेम हियर ABC. सो ट्रायंगल ABC, या हम कह सकते हैं इसी को ट्रायंगल BCA या फिर ट्रायंगल CAB। तीनों में से कोई भी नेम दे सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि तीनों नेम हमने जब दिया है तो ये हमारा जो वर्टेक्स पॉइंट है हमेशा बीच में होना चाहिए। ये सब 3 वर्टेक्स होते हैं ना ट्रायंगल में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं वर्टेक्स मिडिल में ही आता है हमेशा। So this is all about how to construct triangle. After watching video, you all try to yourself to draw triangle.